Good morning, friends. This is DART, Daily Current Affairs Revision Test, in which we deal with 5 of the most important MCQs from the best sources that are PIB, The Hindu, and Indian Express. This is an initiative by Questlink IS, and today on 27th of August 2026, Thursday, we will be dealing with today's 5 MCQs. Our first question is from Polity. X was speaking about system of judicial appointment in India. X argued that the collegium system is expressly provided for in the Constitution and therefore enjoys a direct constitutional basis. Y, however, stated that collegium is a judicial creation that evolves through Supreme Court judgments and is not explicitly mentioned in the Constitution. Based on above, select the correct conclusion from options given below. Option A, X is correct, Y is incorrect. Option B, X is incorrect, Y is correct. Option C, the view of both X and Y are correct. Option D, the view of both X and Y are incorrect. Now, you can pause this video and try to attempt this question on your own. This is an easy question. And we'll be moving to solution and explanation. But before that, we'll try to tackle this question based on general understanding. ऐसे ये क्वेश्चन जनरली है, इसमें जनरल अंडरस्टैंडिंग की क्या बात करें, ये जनरल क्वेश्चन ही है। ये सबको पता है कि कॉलेजियम सिस्टम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो जुडिशरी से आया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 1 जजमेंट 2 से आया। तो वही है, इसमें एक्स और वाई के बारे में मैंने पहले ही बताया। ये क्वेश्चन तो 2026 से आना शुरू हुआ है, लेकिन है ये 2 स्टेटमेंट टाइप का ही है ना। इसमें एक्स का कुछ आर्ग्यूमेंट होता है और वाई का कुछ आर्ग्यूमेंट होता है। कई बार थोड़ा सा ऑप्शंस को कॉम्प्लिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपलर टर्म्स में दिया गया। मैंने ये आसान क्वेश्चन बनाया है क्योंकि आसान क्वेश्चन भी होते हैं एग्जाम में, आप हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता। तो आसान क्वेश्चन बनाने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मुश्किल क्वेश्चन बना रहे हैं हार्ड और आसान में गलती कर दे रहे हैं सर एक। तो एक्स बोल रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ये तो गलत बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, एक्स यहाँ पे गलत है। वहीं वाई बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू ये डेवलप हुआ है, तो ये सही बात है, वाई का आर्ग्यूमेंट सही है, एक्स का गलत है, तो आंसर बी है, एक्स इज इनकरेक्ट, वाई इज करेक्ट। ठीक है, वही चीज यहाँ पे दी गई है एक्सप्लेनेशन में। और यहाँ पे थोड़ा ये सेकंड जजेस केस 1993 और थर्ड जजेस केस 1998 का जिक्र है, जिसके थ्रू जो कॉलेजियम सिस्टम अभी अपने प्रेजेंट फॉर्म में डेवलप हुआ था तीसरे जजेस केस से। ठीक है, और ये क्वेश्चन लिया गया द हिंदू के आर्टिकल से, ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर है। दूसरा क्वेश्चन हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द H1B visa program is important for US technology sector because it enables employers to recruit foreign workers for specialized occupation. Statement 2, H1B visas are intended for foreign workers employed in specialty occupation while generally required specialized knowledge and at least bachelor's degree or equivalent. Statement 3, Indian nationals constitute the largest group of beneficiaries of H1B program. Which of the following is correct in respect of above statement? Both statement 2 and 3 are correct. Both explain statement 1. Both statement 2 and 3 are correct, but only one explains statement 1. Option C, only one of the statement 2 and 3 is correct, and that explains statement 1. Option D, neither statement 2 nor statement 3 is correct. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution explanation, but before that, we'll try to tackle this question based on general understanding or if any elimination trick applies. अब देखिए इसमें क्या है कि H1B वीजा के बारे में क्वेश्चन है। तो 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन मैंने बताया कि असर्शन रीजनिंग टाइप का होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन में आपको सही या गलत सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये हमेशा सही होता है। ठीक है, बस इसको पढ़ना है क्योंकि बाकी क्वेश्चन से इसका रिलेशन देख पाए। प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट फॉर यूएस टेक्नोलॉजी सेक्टर because it enables employers to recruit foreign workers for specialized occupation. अब इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि H1B वीजा जो है यूएस टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि
एम्प्लॉयर जो कि स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, मतलब जो स्पेशलिस्ट हैं, जो कि कुछ स्किल स्पेशल रखते हैं, उनको रिक्रूट करने में ये मदद करता है। ठीक है, वही स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, H1B वीजाज आर इंटेंडेड फॉर फॉरेन वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन। अब ये जो बात है, इसी को ये कंफर्म करता है स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 2 सही भी है और इसको एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, दूसरी तरफ देखें तो इंडियन नेशनल्स कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ बेनिफिशियरीज इन H1B प्रोग्राम। तो H1B में सबसे ज्यादा इंडियन है, ये भी सही बात है। लेकिन एक चीज आप देखो कि इस चीज से ये कुछ स्टेटमेंट 1 को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इससे कोई एक्सप्लेन नहीं करता स्टेटमेंट 1 को। तो ये सही तो है अपने आप में स्टेटमेंट, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता स्टेटमेंट 1 को, इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा बी। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक है, अब उसी चीज को यहाँ पर डिटेल में दिया एक्सप्लेनेशन में कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक बार तो यूएस गवर्नमेंट ने H1B फी हाइक किया। H1B वीजा में जो कुछ मतलब डिपॉजिट रखते हैं, तो वो फी बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। ठीक है, लगभग 10 गुना, जिसके कारण चिंता थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेक डाउन कर दिया। लेकिन अभी फिर से दोबारा गवर्नमेंट बढ़ाने की जुगत में बढ़ाने का ट्राई कर रही है यूएस गवर्नमेंट, तो इसलिए ये न्यूज में। ठीक है ना, और H1B पे इंडियन जो भी यहाँ काम करने जाते हैं यूएस में, इंजीनियर्स वगैरह, वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है H1B वीजा पे, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है वो आपने देखा ही सेकंड स्टेटमेंट में। वही उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया है, वो दोनों स्टेटमेंट हमने वहां डिस्कस किए हैं, आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर्ड है। तीसरा क्वेश्चन हमारा गवर्नेंस है। With reference to the Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) scheme, consider the following statements. Number 1, under its credit-linked capital subsidy component, eligible units can receive a subsidy of 35% of the project cost up to rupees 10 lakh per unit. Number 2, the scheme supports self-help groups, SHGs, farmer producer organizations, FPOs, and cooperatives and individual entrepreneurs in micro food processor sector. Which of the statements given above is or are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We'll be moving to solution and explanation, but before that we'll try to tackle this question based on general understanding or if any elimination trick applies here. अब ये 2 statement type question है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 भी था, लेकिन उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके, सोफिस्टिकेट करके यूपीएससी ने 2026 में प्रेजेंट किया। तो इसमें देखें किसके बारे में पूछ रहा है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज PMFE स्कीम। ठीक है, प्रधानमंत्री का फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग। जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है ना, माइक्रो छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट, उसको फॉर्मुलाइज करने के लिए एक स्कीम आई है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो ये एक्चुअली फैक्चुअल क्वेश्चन है ज्यादा, तो इसमें बस यही अपन देख सकते हैं, अगर इसके बारे में नहीं पता है, कि अगर इसमें कुछ आउटरेजियस स्टेटमेंट या फिर ऐसा कोई फैक्ट फिगर वर्ड जो कि लॉजिकली सही नहीं लग रहा है, वो देखते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में अंडर इट्स क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी कंपोनेंट, एलिजिबल यूनिट्स कैन रिसीव अ सब्सिडी ऑफ 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू रुपीज 10 लाख पर यूनिट। देखो, अगर माइक्रो है इंडस्ट्री, देखिए अभी रिसेंट जो अपडेट आया है एमएसएमई का, उसके हिसाब से एमएसएमई के मतलब इन्वेस्टमेंट को देखें अगर, तो इन्वेस्टमेंट में 2.5 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, 2.5 करोड़ तक का लिमिट सेट किया था माइक्रो के लिए। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि 35% प्रोजेक्ट कॉस्ट दे रहा है, फिर भी 10 लाख तक ही दे रहा है। तो एक्चुअली में ये कि ये बहुत जो छोटे हैं, माइक्रो में भी जो छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस बने हैं, जो गांव में वगैरह में, जैसे अचार बनाने का, पापड़ बनाने का, या फिर मान के चलो जैम वैम तक भी, जो सस्ते छोटे यूनिट्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट की स्कीम आई है। तो इसलिए 10 लाख तक ही कॉस्ट है। खैर, इसमें अगर आपको नहीं समझ में आया तो स्किप भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो। वैसे देखें तो स्कीम सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स, इंडिविजुअल एंटरप्राइज। ये वाला जो है ना, ये स्टेटमेंट लॉजिकली आप डिड्यूस कर सकते हो कि
अगर इस तरह का स्कीम है तो वो सबको ही हेल्प करेगा, मतलब सबको ही सपोर्ट करेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो या फिर एफपीओज हो या फिर कोऑपरेटिव्स हो या फिर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। क्योंकि गांव में मतलब ज्यादातर यही होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या तो बनाते हैं इंडस्ट्रीज, या नहीं तो फिर कोऑपरेटिव्स या इंडिविजुअल या एफपीओज, ठीक है। तो सभी को सपोर्ट करेगा, ऐसे थोड़ी किसी एक को ही करेगा। तो उस हिसाब से देखें तो अगर दूसरा वाला अगर हम लॉजिकली डिड्यूस कर ले रहे हैं तो उस हिसाब से हमारा 2 एलिमिनेट भी हो जा रहा है, ठीक है ना। तो 2 एलिमिनेट होकर 50-50 पे आप पहुंच सकते हो लॉजिकली भी। उसके बाद आपका कॉल है, नहीं आपका कॉल नहीं, इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही लो। 50-50 पहुंच गए तो वो क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए, उसमें आप जो भी आपको सही लगे टिक लगा दो। अब हो सकता है कि ये आपको गलत लगे तो आप बी लगा दोगे, लेकिन आंसर यहाँ पे सी है, दोनों ही सही है। 10 लाख तक ही 35% तक प्रोजेक्ट कॉस्ट में गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में है कि पीएमएफई, प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम वाज हाइलाइटेड थ्रू पीएमएफई बाजार which showcased grassroots food enterprises from across India। अब पीएमएफई बाजार करके भी वहां पे जो भी फूड प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं छोटे छोटे यूनिट्स, तो उनसे उसको वहां पे शोकेस किया जाता है, ठीक है ना। अब वही दोनों स्टेटमेंट जो हमने वहां डिस्कस किया यहाँ पे भी है, और ये क्वेश्चन लिया गया पीआईबी बैकग्राउंडर के इस आर्टिकल से, स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर्ड है। आर्ट एंड कल्चर से हमारा चौथा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, स्टेट एंड ईयर ऑफ इंस्क्रिप्शन। नंबर 1 शांति निकेतन वेस्ट बंगाल 2023, नंबर 2 मोइडम्स माउंट बोरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी महाराष्ट्र तमिलनाडु 2024, नंबर 3 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया असम 2025, नंबर 4 एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ उत्तर प्रदेश 2026। How many of the above pairs are correctly matched? Only 1, option B only 2, option C only 3, option D all 4. Now you can pause this video and try to attend this question on your own. We will be moving to solution and explanation. But before that, we'll try to tackle this question based on general understanding or if any elimination trick applies here. वैसे ये क्वेश्चन है तो फैक्चुअल, लेकिन इसमें कुछ कुछ ट्रिक्स आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए स्कोप है, ठीक है ना, इसलिए इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन ऐसे है कि इस पे तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी रिसेंटली सारनाथ बना है, और उसके पहले जो भी 3 मतलब लास्ट 4 जो इंडिया से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बने हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में ये सबको पता है, ईयर आपको नहीं भी पता हो सकता है, तो इतना आपको सही टिक कर लेना है कि ये सही है। अब एक चीज यार नोटिस करो कि मोइडम्स द माउंट बोरियल सिस्टम अहोम डायनेस्टी, अहोम डायनेस्टी कहाँ थी भाई, अहोम डायनेस्टी थी आसाम में, ये सबको पता, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में नहीं थी। वहीं देखिए आप मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ये था महाराष्ट्र में और एक्सटेंडेड हो सकता है तमिलनाडु तक भी, यहाँ पे एक्सचेंज किया गया है, तो ये दोनों आपके हो जाते हैं गलत इंटरचेंज की वजह से, ठीक है। यही एग्जाम्स में भी मोस्टली इंटरचेंज करते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप में। तो आपका ओनली 1 ऑल 4 ये दोनों चला जाता है, तो 2 गलत आपको पता लग गया। एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट सारनाथ उत्तर प्रदेश में, ये सबको पता है, और रिसेंटली 2026 में ये हुआ है, ये भी सबको पता है, तो आंसर बी हो जाता है। ये क्वेश्चन इजियर साइड पे ही है, देख के घबराना नहीं है कि मैच द फॉलोइंग है, वो भी 3 कॉलम का, ठीक है ना, आंसर बी है। वही एक्सप्लेनेशन में वही चीज दी गई है कि इंडिया का रिसेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंस्क्रिप्शन इंक्लूडेड शांति निकेतन, तो ये मतलब शुरू से दिया है 2023 वाला शांति निकेतन 24 में, मराठा वाला 25 में, मोइडम्स 24 में, और सारनाथ अभी रिसेंटली। और शांति निकेतन के बारे में दिया है कि कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2023 में बना, वेस्ट बंगाल से है। मोइडम्स के बारे में दिया है माउंट बोरियल सिस्टम में अहोम डायनेस्टी का। वही मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में 2025 में इंस्क्राइब किया गया महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बारे में। और फिर एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट सारनाथ के बारे में दिया गया है 2026 में उत्तर प्रदेश, ये हमने उधर भी डिस्कस कर लिया है। और ये भी पीआईबी बैकग्राउंडर का आर्टिकल है,
यहाँ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर्ड है। अब आज के लास्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन एग्रीकल्चर से है। इसको मैं पहले पढ़ देता हूँ। विथ रेफरेंस टू फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP ऑफ द शुगर केन, consider the following statements. FRP is the price of sugarcane fixed by government for procurement from sugarcane farmers. Number 2, FRP and minimum support price MSP are identical concepts applicable to all agricultural commodities. Option 3, FRP is linked to specified basic sugar recovery rate. Which of the statements given above are correct? Option A, 1 and 2 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 1 and 3 only. Option D, 1, 2 and 3. Now you can pause this video and try to attend this question on your own. We will be moving to solution and explanation, but before that we will try to tackle this question based on genuine understanding or if any elimination trick applies. देखो ये FRP के बारे में क्वेश्चन है। FRP शुगर केन का होता है, MSP जैसा ही होता है लेकिन उसका अलग सिस्टम है। FRP कहते हैं उसको, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। जैसे MSP 23 क्रॉप्स के लिए है, FRP आपका सिर्फ शुगर केन के लिए। पहला पढ़ते हैं, FRP इज द प्राइस ऑफ शुगर केन फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम शुगर केन फार्मर्स। ये सही बात है, गवर्नमेंट फिक्स करती है इसको। FRP एंड MSP आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल टू ऑल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। देखो ये ऑल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, यहाँ यही गलत है तो दूसरा गलत हो जाता है। FRP इज लिंक्ड टू स्पेसिफाइड बेसिक शुगर रिकवरी रेट, ये सही है, शुगर रिकवरी रेट से रिलेटेड होता है। तो आंसर हमारा सी हो जाता है, 1 and 3 ओनली। वही आंसर सी है यहाँ पे। ये कॉन्टेक्स्ट लाइन है, इंडिया शुगर इंडस्ट्री इज इन फोकस अमिड राइजिंग शुगर प्राइसेस। अभी शुगर प्राइसेस राइज किए हैं, उसी के कारण ये न्यूज में है। विद कंसर्न्स ओवर लोअर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्लोबल सप्लाई कंस्ट्रेंट, सीजनल डिमांड एंड मेजर्स टू कर्व होर्डिंग। अब FRP के बारे में थोड़ा डिटेल दिया है कि प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर शुगर केन इज रिम्यूनरेटिव प्राइस दैट शुगर मिल्स आर रिक्वायर्ड टू पे शुगर केन फार्मर्स। अब ये जो है ना प्राइस जो फिक्स कर देती है गवर्नमेंट, वो शुगर मिल्स को देना पड़ता है फार्मर्स को, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सरकार देती है, सरकार फिर बाद में सब्सिडाइज कर सकती है, जो मार्केट गैप है उसको फिल कर सकती है। FRP और MSP, इसीलिए FRP को अलग रखा गया MSP से। MSP में डायरेक्ट सरकार भी प्रोक्योर करती है, लेकिन इसमें मिल्स वाले देते हैं पैसा, ठीक है, नॉट। इसलिए यहाँ दिया FRP and MSP are not identical concepts. FRP is specialized associated with sugarcane, while MSP is broader agricultural price support mechanism covering 23 specified crops currently. अभी wheat, rice, कोपरा, ये सब मस्टर्ड, ऐसे 23 क्रॉप्स आते हैं, ठीक है ना। ये लिस्ट आप जाके देख सकते हो या फिर मैं कभी शेयर कर दूंगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। वही FRP जो है बेसिक शुगर रिकवरी रेट से लिंक्ड है, और उसके बाद रिकवरी रेट क्या है, रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम गिवन क्वांटिटी ऑफ शुगर केन। जो शुगर केन का जो केन है ना, मतलब उससे कितना शुगर रिकवर हो सकता है, कितना ज्यादा शुगर उससे बन सकता है एक केन से, उसके आधार पे शुगर रिकवरी रेट डिटरमाइन होता है। और ये शुगर केन रिकवरी रेट धीरे धीरे कम होते जाते हैं, जितना दिन देर हो जाएगा काटने के बाद, कटाई के बाद तुरंत ही उसको जितने जल्दी मिल में ले आएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि फिर उसके अंदर का रस सूखने लगता है और उसी से शुगर बनता है, मतलब। तो इसलिए रिकवरी रेट जितना फ्रेश रहेगा शुगर केन उतना अच्छा है। तो मिल्स जितना नजदीक रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में जितना कम टाइम लगेगा, उतना ही रिकवरी रेट अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये रहा उसका PIB बैकग्राउंडर का आर्टिकल जिससे MCQ बना था, आप जाके देख सकते हो। इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है। और आपको इन 5 MCQ के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अगर एक्सेस करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ पे आप उसको PDF फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हो। क्रोम पे जाके, क्रोम में ऑप्शन होता है। और फिर इसको अगर आपको क्विज के फॉर्म में अटेम्प्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। हमारे वेबसाइट पे 5 क्वेश्चन क्विज के फॉर्म में आ जाएंगे आपको। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इसको फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। स्टे अपडेटेड, स्टे अहेड, स्टे क्वेस्ट लिंक्ड। थैंक यू वेरी मच।